So from today we are going to solve some questions on what we have learned so far in NLM, Newton's laws of motion. Just to remind you, we are not considering friction here. So a machine gun is mounted on a 2000 kilogram car on a horizontal frictionless surface. So you have a horizontal frictionless surface. Okay. So there is a machine gun which is mounted on this. Diagram doesn't matter really. It is just that you need to understand कि क्या हो रहा है. There's a machine gun. Okay. At some instant, the gun fires bullet of mass 10 gram with velocity of 500 meter per second with respect to the car. The number of bullets fired per second is 10. The average thrust on the system is. How do you find average thrust on the system? Average thrust मतलब average force. How do you find average thrust? What is average thrust on the system? Let's say U is velocity of bullet. U is velocity of bullet. नहीं, it is just बोल सकते हो कार पे, क्योंकि जब बुलेट्स फायर होंगे मशीन गन से तो there will be reaction, है ना? Action is bullet being fired and reaction is thrust. So U is initial velocity of the gun, initial velocity of the bullets, whatever it is. Then you should know कि जैसे जैसे बुलेट्स फायर होंगे वैसे वैसे मास कम होता जाएगा. तो dm by dt is rate of change of mass, है ना? That is mass thrown per second, per second by the machine gun. By the machine gun, right? Good. Then, how do you find out thrust? How do you find out thrust? कैसे करोगे? What is the mass thrown by machine gun per second? Mass of what? How much mass is machine gun throwing? Tell me yes. Mass of each bullet? नहीं, ऐसा है. आप इमेजिन करो ना कि आपके हाथ में गन है, यू आर फायरिंग बुलेट्स, ठीक है? मशीन गन का कुछ मास होगा विथ बुलेट्स. अभी हर सेकंड में मशीन गन जो है वो मास लूज कर रहा है. तो कितना लूज करेगा? मास ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी बुलेट्स यू आर थ्रोइंग आउट पर सेकंड. So that is what I supposed to write. So mass thrown per second by the machine gun is mass of bullet multiplied by number of bullets. Yes, number of bullets fired per second. Bullets fired per second. Okay, so this is how you can find it out. What is mass of each bullet? 10 gram. 10 gram. Okay. 10 gram is 10 mark minus 2 kg. बराबर 10 पर minus 2 kg into number of bullets 10. मतलब total 10 पर minus 10. What is thrust? आपको याद होगा मैंने कल के लेक्चर में बताया था thrust. U dm by dt. Meter per second. Meter per second. This is mass. Kilogram per second. Kilogram meter per second square is force. So that is thrust. तो easy है. What is U? दिया है 500 मीटर पर सेकेंड. हो रहा है ना? dm by dt कितना आया? 10 power minus 1. मतलब कितना आएगा? 15 न्यूटन. एवरेज थ्रस्ट ऑन द सिस्टम. तो ये जो कार का जो मास दिया है ये सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया है, राइट? सो दैट आप
इसमें अटक जाओगे, अरे कार का मास कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, तो दिस इज व्हाई यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। देन a 5,000 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be. So needed thrust is U dm by dt. Correct. Right. इतना ही कि कुछ और करेंगे यहाँ पे, that is thrust. Good. है ना, thrust है। मुझे बताओ ओवरऑल रॉकेट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो एम जी प्लस इक्वल टू यू डी एम बाई डी डी। करेक्ट। तो हाउ डू यू सॉल्व दिस, क्या चाहिए हमको, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, मतलब डी एम बाई डी डी फाइंड करना है। तो डी एम बाई डी डी क्या आएगा हमारा, एम जी प्लस ए अपॉन यू। Do you know M? Yes, 5,000. Do you know G? 10 बोला है, 10 ले लो, प्लस A 20 क्योंकि बोला है, 20 अपॉन U 800. This is 5,000 into 30 by 800. कैंसल कैंसल, मैं तो ऐसा करता हूँ, दो पूरा देता हूँ यहाँ, ठीक है, राइट। तो 50 into 30, 15 by 8 into 10 power 2. Right. Right. So 15 by 8 is 1. Yes, 1.875 into 10 power 2. मतलब 187.5 kilograms per second. कुछ भी नहीं था, easy था। A mass of 10 gram is suspended by a string and the entire system is falling with a uniform acceleration of 400 centimeter per second square. The tension in the string will be. How do you solve this? Easy है, टेंशन फाइंड करना है। एक स्ट्रिंग पे मास लगाया और पूरा का पूरा सिस्टम नीचे गिर रहा है, G माइनस ए, एक्सेलेंट, M G माइनस ए, खत्म। व्हाट इज M? 10 ग्राम है ना, G 980 माइनस ए कितना बोला है, 400, तो 580 into 10, 5,800 times। An army vehicle of mass 1,000 kilogram is moving with a velocity of 10 meter per second and is acted upon by a forward force of 1,000 Newton. An army vehicle of mass is moving already with a velocity of 10 meter per second. अब इस पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया in the forward direction, right? Due to engine and retarding force of 500 Newton due to friction. What will be its velocity after 20 meter per second? क्या करोगे? V is equal to U plus, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पूछा है तो ये यूज होगा। V is equal to U. How do you find out acceleration, by the way? Net force upon m. इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 10। नेट फोर्स कितना है, फॉरवर्ड माइनस अपोजिंग, अपॉन मास कितना है, 1000। टाइम कितना बोला है, कितने सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद। तो ये आएगा 10 प्लस दिस इज 500 by 1000, दैट इज 1/2, है ना। So that is 1/2 into 10. So 10 plus 5 is 15 meter per second. Option number C. A rocket is ejecting 50 gram of gases per second at a speed of 500 centimeter per second. Exactly, F is equal to U dm by dt, है ना, बराबर। A rocket is ejecting 50 gram of gases per second, मतलब 50 gram is
actually dm by dt, है ना. 50 gram is how many kilogram? 50 into 10 power minus 3 हो गया. u कितना दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है. तो इजी है. ये दो ये 3 गए 25 न्यूटन. धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा. will increase the level but slowly. A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block is. So this is exactly, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वेज पे अगर एक ब्लॉक है उस पे हमने कंपोनेंट्स निकाले थे. हाँ नहीं, look here, we had yes, we had a block here on this wedge. This angle is theta. ये सॉल्व किया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वेयर वी विल बी गिविंग इट अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. द होल सिस्टम इज accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge. What is the force exerted by the wedge on the block? What is the force exerted by chair on you? Normal reaction. So normal reaction पूछा है यहाँ पे. They are asking you normal reaction. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. तो how do you find out normal reaction here? तो there is something that you need to understand. Components. अगर आपको याद होगा सबसे पहले there is a force here, there is a force here, right? So this force is mg sin theta. This force is mg cos theta. This force is normal reaction. मैंने इस वेज को यहां से एक्शन दिया है, राइट, हॉरिजॉन्टली. तो वेज जो है वो नॉर्मली रिएक्ट भी करेगा. एक्शन रिएक्शन मतलब वो रिएक्ट भी करेगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में. तो दिस इज रिएक्शन MA. सो यू हैव रिएक्शन MA हियर. करेक्ट? समझे यहां तक? दिस इज MA. Now you can do components, of course you can do components of this. अगर आपको याद है this thing is mg here, ये थीटा है by the way. तो MA कैसे सॉल्व करोगे? If this angle is theta, then this angle becomes 90 minus theta, right? तो ये जो MA फोर्स है, इस MA रिएक्शन के भी दो कंपोनेंट होंगे which are mutually perpendicular to each other. एक जाएगा यहाँ पे in the direction of mg cos theta, यहाँ पे. दूसरा जाएगा here, correct? तो this component is what? MA cos theta. क्यों? अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है. तो ये MA, ये वाला साइड आएगा MA cos of 90 माइनस थीटा, मतलब MA sin थीटा. तो ये हो जाएगा आपका MA sin थीटा कंपोनेंट. करेक्ट? क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ यहाँ पे एक रिएक्शन ज्यादा है क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टली पुश कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन आएगा. इज इट क्लियर? 100%? गुड. तो आपको क्या पूछा है? They're asking you what? They're asking you normal reaction कितना है? The force exerted by the wedge on the block is. What is normal reaction then? MA sin theta plus. Very good. Excellent. Correct. Okay. But what is A?
जी साइन थीटा, नहीं, ए क्या है, ए एक्सेलरेशन पक्का, थिंक अबाउट इट, पक्का है क्या? क्योंकि आई डोंट नो इफ यू कैसे करोगे, थिंक अबाउट इट। ये जो ए नो 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 नो, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। so that the block does not slip on the wedge, ब्लॉक वो वेज के ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो क्या मतलब है, एम ए कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा दे आर बैलेंसिंग, है ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, क्योंकि ये यहां से मिल जाएगा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब जी टेन थीटा, राइट। तो ये आ जाएगा आपका एम, एम ए की जगह पे जी टेन थीटा, जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, करेक्ट। देन कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको, डेफिनेटली टेन को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई कैन राइट डाउन साइन अपॉन कॉस, बट हाउ डू यू सॉल्व दिस, आगे क्या करेंगे, दैट्स वेयर यू नीड टू थिंक, यू नीड टू थिंक, सिंपल है। ओके, आई गिव यू हिंट, ऐसा करेंगे, आई विल राइट डाउन दिस एज एम जी, ओके, कॉमन, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा पहली टर्म में, प्लस कॉस थीटा सेकेंड टर्म में, मतलब आर इज इक्वल टू एम जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज वन, तो एम जी अपॉन कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर डी। तो सिर्फ जो एक्स्ट्रा तुम हॉरिजॉन्टल एक्सेशन दे रहे हो, दैट इज ब्रिंगिंग द चेंज, उसकी वजह से ये एम ए कॉस थीटा और एम ए साइन थीटा आया है ना, तो ये ध्यान होना चाहिए आपका। अदरवाइज इफ यू डोंट कंसिडर दैट, देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर उस केस में तो सिर्फ आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा बन गया ना, अगर वो एक्स्ट्रा एम ए नहीं है तो। okay. The horizontal adjacent figure is a part of horizontal stretched net. Section AB is stretched with a force 10 Newton. The tension in the section BC and BFR. तो क्या है कि ये है BF, ये है BC और दिस इज AB। AB इसको स्ट्रेच किया है 10 न्यूटन से, ये एंगल 120 है, ये एंगल 120 है, ये एंगल भी 120 है, ये है बी एफ सेक्शन, ये है बी सी सेक्शन, करेक्ट, राइट। यहाँ पे इसको स्ट्रेच किया, व्हाट आर द स्ट्रेचेस बी सी एंड बी एफ, ऐसा पूछा है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, वाई, लामिस थ्योरम, लामिस, गुड, वेरी गुड। तो फोर्स अलोंग ए बी अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, ए बी को अपोजिट कौन सा है, 120 डिग्री, force along BC upon opposite force upon BF अपॉन साइन 120, क्योंकि एंगल सेम है तो फोर्सेस सेम है, मतलब टेंशन सेम है, मतलब 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, देयरफॉर एफ ए बी दैट इज टेंशन इज इक्वल टू एफ बी सी इज इक्वल टू एफ बी एफ, खत्म, लामीस थ्योरम। The velocity of a body at time t equal to 0 is 10 root 2 meter per second in the northeast direction.
It is moving with an acceleration of 2 meter per second square directed towards south. The magnitude and direction of the velocity of the body after 5 seconds will be. Easy question है. पहले मैं डायग्राम में डायरेक्शन बता देता हूँ. So you already know directions. So this is east, north, west, south. The velocity of a body at time t equal to 0, मतलब initial velocity of the body is 10 root 2 north east. यहाँ पे आपको ये बताना चाहिए नॉर्थ ईस्ट जो है वो नॉर्थ के साथ भी और ईस्ट के साथ भी 45 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट. It is moving with an acceleration of 2 meter per second square towards the south. The acceleration is towards the south and the value of acceleration is 2 meter per second square. The magnitude and direction of the velocity of the body after 5 seconds will be. So what you will be doing is a very simple thing. This is u bar. That is 10 root 2. But 10 root 2 what? I cap, j cap, what? 10 I cap plus 10 j cap. क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया है दिस साइड एक्ट्स एज हाइपोटेन्यूज, या फिर आप बोल सकते हो 45 डिग्री है तो रिजॉल्व करोगे ना, तो यू एक्स क्या आएगा, यू कॉस 45, और हाँ यू वाई क्या आएगा, यू साइन 45, मतलब यू एक्स और यू वाई यहाँ पे आएगा 10 and 10, राइट. तो यू बार हमारे पास होगा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप. एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इन विच डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन कौन सा है, माइनस जे कैप है, राइट. तो वी बार विल बी इक्वल टू यू बार प्लस ए बार टी. तो यू बार इज 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस ए बार इज माइनस 2 जे कैप मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब ये और ये कैंसल. तो 10 आई कैप इज ईस्ट डायरेक्शन, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, राइट. तो इजी क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर ए है, राइट है, करेक्ट है. So next question is, a particle moves in the xy plane under the action of a force F such that the components of its linear momentum p bar at any time t are px equal to 2 cos t and py equal to 2 sin t. The angle between f and t is, जोक है, जोक. क्यों जोक है, क्योंकि p बार इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, मतलब आपके पास p बार तो ऑलरेडी है 2 cos t आई कैप plus 2 sin t j cap. Do you remember Newton's second law of motion formula? Exactly. So you will have F bar equal to dp bar by dt. मतलब कुछ नहीं है, F बार निकाल लो, पहले डेरिवेटिव ले लो, 2 cos t I cap plus 2 sin t j cap, okay, j cap. All right, then you will have F bar is equal to 2 constant outside derivative cos t का minus sin t I cap, वापस से वही होगा प्लस 2 sin का cos t j cap, बराबर. F बार मिल गया आपको, क्या मिल गया, माइनस 2 sin t आई कैप प्लस 2 cos t j कैप. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t I cap plus 2 cos t j cap. 2 sin t
हाउ डू यू फाइंड एंगल एफ बार डॉट पी बार, है ना, अपॉन mod of f into mod of p, that is cos of the angle between two vectors. So this is cos of theta. ये याद है क्या, कंपोनेंट वाइज एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड होगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, इसका होगा पी एक्स प्लस पी वाई स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा तो fx is minus 2 sin t and px is 2 cos t, है ना, minus 2 sin minus 4 sin t cos t plus fy is 2 cos t and this is yes 0, नीचे फिर कुछ भी हो I don't care, cos theta 0 मतलब theta is 90 degrees. अब ऐसा है कि देयर इज अ ट्रिक, मैंने इसलिए बोला था कि इट इज अ जोक। क्यों जोक? अगर एक कंपोनेंट कॉस है दूसरा साइन है तो पहला डेरिवेटिव लेने के बाद कॉस का माइनस साइन और साइन का प्लस कॉस होता है, तो जब आप एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई करोगे तो वो जीरो ही बनेगा। इट कम्स ओनली आफ्टर हाई लेवल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वेक्टर्स। तो इमीडिएटली समझ गया था कि कॉस थीटा जीरो आ रहा है मतलब थीटा 90 आने वाला है ना। कॉन्जुगेट कंपोनेंट्स है ना, कॉस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का कॉस, तो पहले टर्म में 2 कॉस माइनस 2 साइन प्रोडक्ट दोनों का, दूसरे टर्म में 2 साइन और 2 कॉस का प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट प्लस एक प्रोडक्ट माइनस, दोनों को ऐड कर रहे हो, जीरो होने वाला है। अ गार्डनर waters the plant by a pipe of diameter 1 mm. The water comes out at a rate of 10 centimeter cube per second. The reactionary force exerted on the hand of the gardener is. So this question is actually little tricky because you don't know the formulas. You have to develop a formula for yourself. Gardener waters the plants by a pipe of diameter, मतलब diameter मतलब radius हमको पता लग जाएगा, 0.5 mm मतलब 5 into 10 power minus 4 meter. The water comes out at a rate of 10 centimeter cube per second. मतलब you have been given volume of water flowing out per unit time, मतलब 10 centimeter cube per second. How much is 10 centimeter cube in meter cube? 1 centimeter is 10 power minus 2, उसका cube 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको रिएक्शनरी फोर्स पूछा है तो मतलब थ्रस्ट पूछा है, रिएक्शन इज व्हाट, यू डीएम बाई डी टी, पक्का नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, डी डी टी ऑफ पी ऐसा आता है, दिस इज डेफिनेशन बराबर, तो डी डी टी ऑफ एम इन टू वी, फिर इसको आप लिखोगे पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे dm by dt जीरो है, क्यों? पाइप में तो पानी का सप्लाई कंटिन्यूअस होगा, ये रॉकेट तो है नहीं कि फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो मास कांस्टेंट है हमेशा, ऑलवेज कमिंग, वाटर इज ऑलवेज कमिंग थ्रू द पाइप, तो dm by dt जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा m dv by dt, राइट। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, दैट इज व्हाट आई वांट, हाउ डू यू सॉल्व दिस थिंग, कैसे करोगे मुझे बताओ। नल टैप खोलने से पहले
वाटर का वेलोसिटी क्या था, 0, राइट। तो व्हाट इज डीवी, वी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल तो v है, इनिशियल तो 0 है, तो मैं mv/t लिख सकता हूँ। समझे यहाँ तक? अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे v पता ही नहीं, और ये v वॉल्यूम है, डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, दिस इज वॉल्यूम, वो स्मॉल v वेलोसिटी है। ओके, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी बाय t, राइट। देन इसके आगे क्या करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि v/t तो है, रो भी पता है वाटर के लिए, लेकिन v अभी भी नहीं पता। वॉल्यूम बाय t पता है, रो पता है, व्हाट इज वेलोसिटी v, दैट इज समथिंग यू नीड टू वर्क आउट। आपको एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक ऐसा टॉपिक है कि आपके पास एक वायर है जिसका एरिया a है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, total current flowing through this area A depends on number of electrons, depends on area, जितना ज़्यादा एरिया उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड वहां से पास होंगे, depends on velocity of electrons, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा एक सेकेंड में पास होगा, करेक्ट, राइट, एंड सम अदर फैक्टर्स। तो वेलोसिटी इज करंट अपॉन एन ए, ऑफ कोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा, है ना, करेक्ट, है ना। तो सिमिलरली अगर हमारे पास एक पाइप है जिसका एरिया ए है, उसमें से पानी कितना बाहर आ रहा है, वॉल्यूम कमिंग आउट पर यूनिट टाइम, v/t, कैसे लिखोगे, a इंटू b, एरिया मल्टीप्लाइड बाय v। नहीं समझ में आया तो एरिया का यूनिट्स क्या होता है, मीटर स्क्वायर, v क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया, है ना, राइट। हाँ, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो यहां से मुझे v क्या मिला, वॉल्यूम बाय at, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। तो क्योंकि मुझे वेलोसिटी नहीं पता था, मुझे पता था v/t, तो मैंने क्या किया, मैंने वेलोसिटी को v/t के टर्म्स में डिराइव कर लिया। तो फिर मैं इक्वेशन 2 को 1 में डाल दूंगा, तो फ्रॉम 1 एंड 2 F is equal to volume by T into rho, करेक्ट, और वेलोसिटी भी क्या आया, वॉल्यूम बाय T into A, करेक्ट। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम बाय T का स्क्वायर, रो बाय A। A आप फाइंड कर सकते हो क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप क्या होता है, सर्कुलर, मतलब पाई आर स्क्वायर, बराबर, राइट। तो मुझे आर दिया है, क्या दिया है ना, आप रेडियस ऑफ पाइप दिया है ना, v/t दिया है क्या, 10⁻⁵, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू v/t इज 10⁻⁵, इसका स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻3, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, 5 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा, इट इज सिंपल। हाँ, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, 10⁻⁵ का स्क्वायर, 10⁻10 और +3, 10⁻7, नीचे 10⁻8 है, ऊपर जाएगा प्लस होगा, 10⁻7 और 10⁻8, करेक्ट। 10⁻7 और 10⁻8 कितना होता है, कितना, देखो ऐसा है, ये ओरली में बता सकता हूँ कि 10⁻5 का स्क्वायर कितना, -10, +3 कितना, -7, नीचे -4 का स्क्वायर है, ऊपर आके -+8 हो जाएगा, कितना, 10 बचेगा,
10 बचेगा, बराबर 10 बचेगा। 5 इंटू पाई, पाई की वैल्यू लगभग लगभग 3.1, तो 1/15 है ना। मैं उसको 16 मान लेता हूँ ना, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चर में बताया था हाफ इज 0.5, 1/4 इज उसका भी हाफ 0.25, और 1/16 इसका भी हाफ 0.125, बराबर। तो 0.125 मतलब 0.127, बराबर, क्लियर है ना। ओके, तो 0.125 इंटू 10, 1 डी, बी 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 कैसे आया? बी कैसे आया? 1.6 तो ये 1 मिनट रुको, बताता हूँ मैं प्रॉब्लम क्या, बता देता हूँ आपको। ये आपका आया एक्चुअली 1.27 है ना। हाँ, लेकिन 1.27 इसलिए आ रहा है बिकॉज वी हैव मेड some mistake in calculation. What mistake have we made in calculation? What mistake have we made in calculation? या तो हमारी गलती हुई या तो उन्होंने गलत दिया हुआ है, दोनों में से एक। गलत मतलब ऑप्शन गलत दिया हुआ है या फिर उन्होंने वैल्यू गलत दी हुई है, दोनों में से एक। गलती हमारी है, कहाँ गलती है बताओ। नहीं, हाँ लेकिन कहाँ? नहीं, 5 का स्क्वायर कौन करेगा? नीचे 5 स्क्वायर था कि नहीं? तुमने 10⁻4 का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर किया ही नहीं। 25 इंटू पाई, 25 इंटू 3, एग्जैक्टली। अब आएगा आंसर करेक्ट। ओके, नाउ यू विल बी गेटिंग 0.127 न्यूटन, right? So this is where you may go wrong, or actually in reality 3.1 into 25 is not 75, it is greater than 75. So agar you want to verify, I can verify for you now. Of course I will be using calculator because we don't have that much of time. So 1 by 3.14 into 25, see exactly 0.0127 into 10 है वहां पे, तो 0.127 न्यूटन, करेक्ट। A lift is going up. What is net acceleration? G plus A. The total mass of the lift and the passenger is 1500 kilogram. The variation in the speed of the lift is given in the graph. The tension in the rope pulling the lift at t is equal to 11th second. 11th second matlab somewhere here. So how do you find a tension pulling the string at 11th second? तो 11th सेकेंड पे पहले आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे, क्यों? क्योंकि मुझे पता है लिफ्ट इज गोइंग अप। एक मिनट समझ लो पहले, यू आर राइट, जी प्लस ए, यू आर राइट। लेकिन कहां कंफ्यूजन होता है, जब आप 11 सेकेंड पे ए निकालोगे। 11 सेकेंड पे ए कैसे निकालोगे? 2 पॉइंट ले लो, ए और बी। स्पीड टाइम ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। हाँ, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि फाइनली 0 है। मतलब मैं एक चीज लिख देता हूं आपके लिए, वी बी माइनस वी ए बाय टी बी माइनस टी ए, बराबर। वी बी इज 0 माइनस 3.6 अपॉन 12 माइनस 10, मतलब 3.6 विद नेगेटिव साइन बाय 2 मतलब -1.8।
8 बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. गुड, एक्सेलेंट. नाउ स्टूडेंट टेक इट लाइक दिस. लिफ्ट नीचे जा रहा है, लिफ्ट नीचे नहीं जा रहा है. क्या होगा लिफ्ट में? तो लिफ्ट स्टार्ट करोगे तो पहले एक्सीलरेट होगा, फिर कांस्टेंट वैल्यू होगा, फिर लिफ्ट को रुकना है ना. हाँ तो डी एक्सीलरेशन, वो लिफ्ट रुकने का केस, नीचे नहीं आ रहा है लिफ्ट. दिस इज वेयर यू मे गो रॉन्ग. फिर आप बोलोगे टेंशन टी इज एम, जी प्लस ए. एम इज 1500 और जी 9.8, और ए जो है वो नेचुरली माइनस आ गया तो लिख देना उसको. अगर तुमने गलती से इसको नीचे आने का केस समझ लिया तो माइनस ऑफ माइनस तुम प्लस कर दोगे. तो 1500 इंटू 8 इज सिंपल. 15 का कितना होता है? 12. तुम क्या करते हो? तुम 15 इंटू 8 करते हो, ये गलती करते हो. मैं 150 से 50 से 30 माइनस करता हूँ. 15 इंटू 10 कितना? 150 इंटू 8 मतलब 15 इंटू 2 माइनस करना पड़ेगा. तो राइट, गुड. ओके, सो दिस क्वेश्चन you already have done thrice. 2 बार, तीसरी बार है अभी, ये थर्ड टाइम है. 100-gram iron ball having velocity 10 meter per second collides with a wall at an angle 30 degree, right? And rebounds with the same angle. If the period of contact between the ball and the wall is 0.1 second, the force experienced by the wall is. If you remember, I told you, मैंने आपको ये करवाया था. मान लो this is normal to the wall, then the ball is coming like this. ये ऐसा आया और ऐसा रिबाउंड होके चले गया at same angle. Ball went at same angle, right? Then what you should know is with the wall is 30 degree. Okay, with the normal नहीं बोला है, with the wall this is 60 degree. I have told you 2 times at least. ऐसे केसेस में what was change in momentum? 10 नहीं, मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट. मैंने ये बताया था कि ये वेलोसिटी है ux, ये 60 तो ये 60 तो ये है u cos of 60. ये u, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट. तो uy u sin 60, राइट. तो यहाँ पे देखोगे तो ये है आपका vx, ये है आपका vy. तो vx इज माइनस ux, बस इतना ही है. vy इज uy, इतना ही है. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल करने के लिए जब लगाया था मैंने, क्या कैंसल होगा, क्या रिटेन होगा? माइनस करोगे तो जो चेंज नहीं हुआ वो कैंसल होगा. तो 2v cos 60 will be the total change in velocity. So total change in momentum will be 2mv v cos 60. cos 60 cos 60 is 1/2, मतलब mv. This is the total change in momentum. हमको बोला है what is the force. आपको याद है this is nothing but impulse. नहीं याद होगा तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ तो याद ही होता है ना, dp/dt. तो dp इज इक्वल टू एफ dt ना. हमको क्या चाहिए? हमको फोर्स ही चाहिए, ठीक है. तो dp कितना है? mv. t तो t दिया ही हुआ है. व्हाट इज m? 100 ग्राम, मतलब बराबर है 0.1 किलोग्राम. हाँ, इंटू v कितना? 10. ओके, अपॉन 0.1, 10. आंसर 10 आएगा. एग्जैक्टली, बस वही तो इशू है, वही तो इशू है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A rope of length 5 meter is kept on a frictionless surface and a force of 5 Newton is applied to one of its end. Find
find tension in the rope at 1 meter from this end. A rope of length 5 meter is kept on a frictionless surface and a force of 5 Newton is applied to one of its end. Find the tension in the rope at 1 meter from this end. ऐसा है, हमारे पास एक रोप है 5 मीटर का, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है ना, हम इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा फोर्स, देखो यू शुड नो कि क्या होता है, इस एंड तक आते आते 5 न्यूटन का फोर्स हुआ है? तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द फोर्स हियर एट 1 मीटर, व्हाट इज द फोर्स हियर एट 1 मीटर, तो मतलब टेंशन पूछा है, तो you should know if total length is L, this distance is X, so tension at this particular point is given by, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है L minus X by L into total force. If I am not wrong, क्योंकि ये क्या है, क्यों ऐसा आता है, सिंपल लॉजिक, टोटल फोर्स अपॉन टोटल लेंथ इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक मीटर में कितना फोर्स है ना, लॉजिकली, और L माइनस एक्स मतलब मुझे ये देखना है कि यहां पे इस P पॉइंट पे कितना फोर्स, तो कितना लेंथ है L माइनस एक्स, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या हो गया, फोर्स हो गया. सी द थिंग इज दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, हो गया सॉल्व, खत्म. कितना था 5, ये कितना था 5, ये कितना है 4, तो 4 न्यूटन. मतलब लॉजिकली बोलोगे तो हर एक मीटर में एक एक न्यूटन का फोर्स बढ़ते जाएगा. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, सिंपल क्वेश्चन था. A bullet of mass 5 gram is shot from a gun of mass 5 kg. The muzzle velocity of the bullet is 500 meter per second. The recoil velocity of the gun is, this is joke, mvvb equal to mgvg. तो vg is equal to, एक्चुअली निगेटिव आता है क्योंकि रिकॉइल है, गन पीछे आएगा, राइट, तो ये आ जाएगा आपका mb अपॉन mg इंटू vb. mb मास ऑफ बुलेट 5 किलो, 5 किलो ना, 5 ग्राम, ये किलोग्राम, 10 पर -3. मास ऑफ गन इज 5, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 500, तो जोक है ये, कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, a body of mass capital M explodes into 3 pieces, 2 of which of mass 4 m/4 each are thrown off in perpendicular directions with velocity of 3 meter per second and 4 meter per second respectively. The third piece will be thrown off with the velocity of, पहला पीस यहां गया, दूसरा यहां गया, तीसरा यहां गया, राइट, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट. तो ये है v1 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, इसका मास कितना m/4, ये है v2 इज इक्वल टू 4, इसका मास कितना m/4. अभी मुझे बताओ पहली चीज कि इनिशियल तो मास कैपिटल M था, m/4 ये ले गया, m/4 ये ले गया, तो बचा हुआ m/4, बचा हुआ m/4 बचा, क्या कितना बचा m/2 बचा, बराबर तो बोल रहे हो, कैसे सोचते हो, टोटल m को 10 किलो मान लो ना, है ना, या 10 नहीं मानना तो 4 मान लो, इजी है. मतलब टोटल मास अगर 4 था तो 1/4 ये ले गया, 1/4 ये ले गया, बचा कितना 2/4, 2/4 बचा, ठीक, बराबर. तो अगर वेक्टर्स अच्छे से समझा होगा, नहीं तुम यहां पहले समझ लो,
अगर तुमने वेक्टर्स को अच्छे से समझा होगा तो तुम्हें ये समझेगा कि अगर पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर है तो तीसरा उसका रिजल्टेंट ही होगा, है ना। तीसरा उसका रिजल्टेंट होगा। क्या क्या मतलब होता है? तीसरा उसका रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है? नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है। ये तीसरा उसका रिजल्टेंट होने का क्या मतलब होता है? दैट V3 is under root of V1 square plus V2 square। खत्म खत्म। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 का उसका रूट। करेक्ट करेक्ट। गलत। क्यों गलत? Why it is wrong? Why not it is correct? हमने सिर्फ वेलोसिटी देखा, तुमको मोमेंटम देखना होता है। यहाँ पे मोमेंटम मतलब यू विल से P3 is equal to under root of P1 square plus P2 square। मतलब M3V3 is equal to M1V1 square plus M2V2 square। वो V3 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर कब करेक्ट था? जब इक्वली स्प्लिट हुआ है, एक m/3 एक m/3 और तीसरा m/3। इक्वल स्प्लिटिंग नहीं है यहाँ पे, इसलिए तो M3 होगा m/2 V3 इक्वल टू M1 V1 3 इंटू m/4, 3 इंटू m/4 का स्क्वायर प्लस M2 V2 4 इंटू m/4 का स्क्वायर। यस बट आई डोंट लाइक दिस 4 इंटू m/4 स्क्वायर। क्यों नहीं लाइक करता हूं मैं ये सब चीजें? मैं बताता हूँ। कॉमन निकाल सकते हो। मैं सीधा सीधा m/4 का स्क्वायर को डायरेक्ट रूट के बाहर m/4 लिख सकता हूँ, फिर तुम्हारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बची गया। मतलब ये 1 जा 2 जा। अभी बता दो मेरे को, ये है रूट ऑफ 25 5 5/2, आंसर इज 2.5। तुम्हें आंसर तो याद था लेकिन कैसे आया वो याद नहीं था, राइट? सो it you have to solve it with the help of conservation of linear momentum। ये एक चीज है। मैंने v3 स्क्वायर या फिर v3 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 प्लस v2 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वेलोसिटी का कंजर्वेशन नहीं होता, कंजर्वेशन मोमेंटम का होता है। उसके लिए, और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही आता है दिस, समझाइए। एट अ सर्टेन instant of time, the mass of a rocket going up vertically is 100 kilogram। Certain instant of time मतलब it is instantaneous mass, it is not initial mass, right? If it is ejecting 5 kilogram of gas per second, मतलब dm by dt दिया है 5 kg per second at a speed of 400 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका स्पीड था v बोल दो, u बोल दो, 400 मीटर पर सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट विल बी सेम है, f इज इक्वल टू क्या लिखोगे? m v dm by dt, राइट, प्लस m dv by dt। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट बोली है तो वो dv by dt जीरो हो जाएगा, बराबर ना, राइट। m ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर g प्लस a v dm by dt, right? m is 100, g is 10। what is acceleration? पूछा है, हाँ पूछा है। a what is v? 400। what is dm by 5, बराबर 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, right? So this is how you solve such questions। this is oral and oral।
Three equal weights ABC of mass 2 kg each are hanging on the string passing over a fixed frictionless pulley as shown in figure. The tension in the string connecting B and C. मतलब यहाँ पे टेंशन कितना होगा इस स्ट्रिंग में, ये आपको पूछा है। तीनों का मास 2 2 2 है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? F net upon total mass, राइट? व्हाट इज F net? 2m, क्योंकि ये m प्लस m नीचे ला रहा है सिस्टम को, ये नीचे ला रहा है ना, बराबर ना? और अपोज कौन कर रहा है? ये ए ब्लॉक, मतलब 2m माइनस m इंटू जी, दिस इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास इज 3m, 3 abc मतलब g बाई 3, mm कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू g की वैल्यू कितनी? चलो g बाई 3 रखो, कोई बात नहीं। टेंशन पूछा है ना, व्हाट इज टेंशन? व्हाट इज टेंशन? अरे टेंशन इन द स्ट्रिंग, सी के लिए तुम एफबीडी ड्रॉ करोगे ना, फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज mg डाउनवर्ड्स, दिस इज t अपवर्ड्स, ओवरऑल दिस इज कमिंग डाउन। कमिंग डाउन, कमिंग डाउन का क्या मतलब होता है? mg माइनस a, बराबर? श्योर श्योर 100%? वो कंफ्यूज है, जस्ट अ मिनट। t mg माइनस टी, क्योंकि सिस्टम ओवरऑल डाउन जा रहा है, मैं सी की बात कर रहा हूं, बराबर? बराबर इक्वल टू एफ नेट, एफ नेट करेक्ट ना? व्हाट इज एफ नेट? कौन सा मास की बात कर रहे हो फ्री बॉडी डायग्राम में? सी की। m इंटू ए, मतलब एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, मतलब टी इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। सिस्टम नीचे आ रहा है मतलब जी माइनस ए होता है, बराबर? व्हाट इज एम टू? व्हाट इज जी? जी। व्हाट इज ए? सो व्हाट इज this 2g by 3, 2g by 3 is 4g by 3, बराबर ना? करेक्ट। तो ये आ गया आपका 4g by 3, 4g by 3, 40 by 3, खत्म। 17th ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा सॉल्व होता है एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है मोरलेस। Two masses 2g, 2 kg and 3 kg are attached to the end of a string passed over a fixed pulley at the top. The tension and acceleration are, देखो टेंशन एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो सिंपल चीज है, एफ नेट बाय टोटल मास। एफ नेट क्या? 3g माइनस 2g अपॉन टोटल मास इज 5, मतलब g बाय 5, बराबर? मतलब ये तो दोनों अभी आने से रहे। टेंशन इन द स्ट्रिंग किसी भी एक पे लगा दो ना, 2g पे लगाओगे तो फिर 2g पे लगाओगे तो 2g नीचे, हाँ 2g नीचे t ऊपर, 2g कम है तो ये ऊपर एक्सीलरेट होगा, बराबर? t इज इक्वल टू 2g प्लस ए। 2 g की वैल्यू कितनी? g है, a की वैल्यू कितनी है? g बाय 5 है, तो 6g बाय 5, 2 इंटू 6g बाय 5 दैट इज 12g बाय 5। अगर 3 kg पे लगाओगे तो क्या लिखोगे? टेंशन इज इक्वल टू 3g माइनस ए लिखोगे, तो 3g माइनस जी बाय 5, ये 4g बाय 5 आया, 4 इंटू 3 12g बाय 5, वापस से वही आ गया। किसी पे भी आप, हाँ लेकिन 3g नीचे जा रहा है, 3 किलोग्राम का मास नीचे जा रहा है, 2 किलोग्राम का मास ऊपर जा रहा है, ये पता होना चाहिए, राइट? ये भी वैसा ही जोक है। 3 blocks, 3 blocks A, B, and C weighing 1827, 1827 are connected as shown in figure with an inextensible string and are moving on a smooth surface. T3 is equal to, ये जो अप्लाइड फोर्स है 36 न्यूटन है, T2 कितना होगा? मैंने बताया था आपको, T2 मतलब उसके पीछे कौन सा मास है वो देखो, तो मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इंटू एक्सेलरेशन, उस रस्सी के पीछे कितना टोटल मास वो देखना, बराबर? किस, नहीं बात तो एक ही है ना,
अगर T2 निकालना है तो T2 जब खींचोगे तो T2 तो B को भी और A को भी खींचेगा, तो T2 के पीछे कितना मास है वो देखना, कितना मास है Ma प्लस MB। और एक्सेशन क्या करते हो आप, एक्सेशन क्या करते हो आप, तो Ma प्लस MB एक्सेशन इज व्हाट, नेट फोर्स। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स होता है, नेट नहीं। नेट कब होता है, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी के डायरेक्शन में बढ़ जाए। हियर इट इज ड्राइविंग फोर्स, हाँ, अपॉन ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, T3, है ना, अपॉन टोटल मास। टोटल मास, टोटल मास क्या आएगा, Ma प्लस MB प्लस MC। यस, Ma प्लस MB प्लस MC बराबर। तो Ma प्लस MB इज 9, ड्राइविंग फोर्स इज 36 और नीचे 36, 9 न्यूटन होता है ओरली। व्हाट इज टेंशन T1, हाँ टेंशन T1 कितना, 1। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। T1 इज ओनली Ma इंटू ए तुमने अभी निकाला, ये तुमने ये निकाला ए, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास 36/36, तो सिर्फ T1 के पीछे 1 किलो ही तो है, 1। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस ओनली। Three solids of masses m1, m2, m3 are connected with weightless string in succession and are placed on a frictionless table. If mass m3 is dragged with a force T, वही same question है, exactly same question है। The tension in the string between m2 and m3 is वही हाँ C option between 2 and 3। No, sir. Three blocks of masses m1, m2, m3 are connected by massless strings as shown on the frictionless table. They are pulled with a force T3, ये 14 न्यूटन है। मास 10, 6 and 4। मुझे पहले बताओ व्हाट इज A, क्विक। ड्राइविंग फोर्स F अपॉन टोटल मास 40 अपॉन 10 प्लस 6 प्लस 4 इज 22। ये आ गया A। क्या पूछा है T2, T2 मतलब M1 प्लस M2 इंटू A। व्हाट इज M1 प्लस M2, 16 इंटू 2, 32 न्यूटन। देखो अगर आपको ये ट्रिक्स पता होते तो यू सी यू आर जस्ट डूइंग इट ओरली। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड NLM लाइक दिस एंड देन आई विल ब्रिंग इन फ्रिक्शन। इसलिए फ्रिक्शन को मैं अलग रखता हूं इनिशियली। दिस इज अ जोक, if understood I'll do it here on the graph itself। क्या है कि हमको body of weight 2 kgWt ऐसा बोला है, is suspended as shown in figure, the tension T1 in the horizontal is ऐसा है। you can do components of this बराबर, क्योंकि दो रस्सी है बेसिकली, there are two strings। मैं मान लेता हूं ये जो है ये T2 है, तो T2 this is 30, T2 sin 30, T2 cos 30, right? तो T2 sin 30 is balancing mg, yes। तो T2 sin 30 is equal to 2 kgWt, मतलब T2 sin 30 is 2, तो 2 kgWt, मतलब T2 is 4 kgWt। Now T2 cos 30 is balancing T1 बराबर, हाँ तो T1 is 4 into cos 30 is √3/2, तो 2√3, right? Good. Okay. Two masses M1 and M2, M1 greater than M2 are connected by massless flexible
and inextensible string passed over massless and frictionless pulley. The acceleration of center of mass is, ये important है, m2 m1 m1 ग्रेटर देन m2 मतलब m1 नीचे आ रहा है, m2 ऊपर जा रहा है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो? सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम लोगों को। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? वेक्टर फॉर्म या स्केलर फॉर्म कोई भी चलेगा मुझे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 a1 bar. What is center of mass formula in general? What is RCM? नहीं, m1 r1 bar plus m2 r2 bar अपॉन, मेरे पास एक मास था, दूसरा मास था, इसका पोजीशन वेक्टर r1 बार था, इसका पोजीशन वेक्टर r2 बार था। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। अगर दोनों मासेस इक्वल हो तो मिड पॉइंट पे, अगर m2 ज्यादा है m1 से तो यहाँ पे m1 ज्यादा है तो m1 के पास है, ये बताना चाहिए। दैट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बराबर। अभी अगर पूरा का पूरा सिस्टम मतलब दोनों पार्टिकल मिला के मूव होने लगे तो वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार अपॉन m1 प्लस m2। अभी वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है इन दोनों का, फिर एक्सेलरेशन होगा। तो दैट इज m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार अपॉन m1 प्लस m2, करेक्ट। लेकिन a1 बार ये नीचे की तरफ है और a2 बार ये ऊपर की तरफ है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट वन इज गोइंग अप एंड अदर इज कमिंग डाउन, राइट। तो आई कैन राइट इट लाइक ACM का मैग्नीट्यूड m1a माइनस m2a। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने a1 को पॉजिटिव लिखा तो मैं बोल सकता हूं a1 बार इज a, a2 बार इज माइनस a। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, क्लियर। अपॉन m1 प्लस m2, मतलब यहां से तो आप डेफिनेटली m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 लिख ही सकते हो और बाहर a आएगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, F net अपॉन टोटल मास। m1 minus m2 upon m1 plus m2. What is net force? m1 minus m2g, क्योंकि m1 ज्यादा था, है ना, अपॉन टोटल मास इज m1 plus m2, मतलब ये आएगा m1 minus m2 upon m1 plus m2 square g। ऑप्शन नंबर A। If you don't know the formulas, then I cannot help you here, correct? तो पता होना चाहिए, simple। This is related to friction, गलती से आ गया है, we'll talk about it when we talk about friction। This is related to friction, गलती से आ गया है, we'll talk about it when we talk about friction। Last question from this set: two carts of masses 200 kg and 300 kg are on horizontal rail are pushed apart, दोनों को push करते हो apart। Suppose the coefficient of friction between the carts and the rail are same. If the 200 kilogram cart travels a distance of 36 meter and stops, then the distance traveled by the cart weighing 300 kg is, ऐसा है,
अगर आपके पास दो बॉडीज है एंड बोथ आर कनेक्टेड विथ अ रोप और समथिंग, तो क्या होगा कि जब आप उसको को दोनों मूव हो रहे हैं ना, पहले रस्सी की वजह से दे विल स्टॉप एट सम डिस्टेंस। तो वो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है ना इस केस में, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ समथिंग, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशो S1 बाय S2 ये आता है M1 बाय M2 का स्क्वायर। ये मैंने थ्योरी में डिराइव नहीं किया, बट वी विल डू इट। एक्चुअली इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट इज S2 by S1. It is actually inversely proportional if I am not wrong. S2 by S1 equal to M1 by M2 square, क्योंकि राइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो यू हैव टू गो एंड ओपन द मॉड्यूल्स एंड चेक इट इज देयर। आई शो यू इट इज देयर, तो ये चेक करो। आपको बोला है 200 किलोग्राम, मतलब M1 बोल देता हूँ, उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस 36 है। मतलब मान लो M1 200 किलोग्राम है, M2 300 किलोग्राम है, राइट। S1 जो है वो कितना 36 मीटर है। तो S2 is equal to M1, that is this squared 36. 2 square is 4, 3 square is 9 into 36, 1 ja 4 ja 16 meter, right? Done. So we are done with NLM.